लिक्विड ट्री, लिक्विड ट्री एंड लिक्विड थ्री, थ्री ये क्या है भाई, इसका मतलब क्या है ये पढ़ते हैं। लिक्विड थ्री एंड लिक्विड थ्री, लिक्विड ट्री है और लिक्विड थ्री इसका क्या है। एक बेलग्रेड सर्बिया हैज इंट्रोड्यूस लिक्विड ट्री एंड अर्बन फोटो बायोरिएक्टर टू कम्बाइट एयर पोल्यूशन। लिक्विड थ्री contain water and uses microalgae to reduce greenhouse gas emission, improve air quality by binding carbon dioxide and producing pure oxygen through photosynthesis। फोटोसिंथेसिस आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है लिक्विड थ्री इज मोर इफिशिएंट देन ट्री, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग 10 year old tree or 1200 square meter of the lawn। तो ये क्वेश्चन में भी पोटेंशियल हो सकता है आपका, प्रीलिम में पूछ सकता है। लिक्विड ट्री, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिक्विड ट्री एंड लिक्विड थ्री। लिक्विड ट्री एंड लिक्विड थ्री कह रहा है भाई, देख लो इसको याद रखना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है। बेलग्रेड सर्बिया हैज इंट्रोड्यूस लिक्विड ट्री एंड अर्बन फोटो बायोरिएक्टर टू कम्बाइट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से बोल सकता है, इज रिलेटेड टू टर्म with the air come back to air pollution, or maybe this is come back to the tiger reservation, or you can say increase that related to tiger reservation, or maybe say that elephant reservation or elephant protection, or maybe any or maybe they tell anything about related terms to combine the air pollution is liquid three contain water and uses microalgae to reduce greenhouse gas emission, improve air quality by binding carbon dioxide and produce pure oxygen through photosynthesis। तो कार्बन लिक्विड थ्री क्या है, कंटेन करता है वाटर एंड यूजेज माइक्रोअल्गी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emission and improve air quality by binding carbon dioxide and producing pure oxygen through photosynthesis। एक चीज़ और यहाँ पर दे रखा है इससे रिलेटेड ही, एक कह रहा है लिक्विड थ्री इज मोर इफिशिएंट दैन ट्री, ये ट्री से मोर इफिशिएंट है इन रिप्लेसिंग 10 year old ट्री एंड 200 स्क्वायर मीटर ऑफ द लॉन। आगे पढ़ेंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक रोग, प्लास्टिक रोग क्या है भाई इसके बारे में पढ़ेंगे। एक रिसर्चर है फाउंड प्लास्टिक रोग ऑन द ट्रिनिडेड island in the state of Espírito Santo in Brazil। संतो ब्राज़ील में करा रिसर्चर है फाउंड प्लास्टिक rocks on the Trinidad Island in the state of Espírito Santo, Brazil। Trinidad Island is an important conservation spot for one of the largest sea turtle, green turtle, and IUCN status in dangerous, IUCN status in dangerous। यहाँ का है भाई जो ये जो है सी टर्टल क्या है भाई, IUCN स्टेटस में इन डेंजरस है। ये ग्रीन टर्टल, ग्रीन टर्टल्स के बारे में बता रहा है भाई, ये क्या है, इन डेंजरस है। ये भी यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है प्रीलिम में, और एक आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बोलेगा ग्रीन टर्टल इज इन द IUCN स्टेटस क्रिटिकल इन डेंजरस और मे बी वनरेबल, ऐसे करके ये आपका दे देता है, तो इन डेंजरस है ये आपको। प्लास्टिक वाज फाउंड इन द रॉक कॉल प्लास्टिग्लोमेरेट्स, प्लास्टिग्लोमेरेट, a mixture of sedimentary granulates and other debris held together by plastic, held together by plastic। आगे क्या करा, दिस इंटरवीनिंग of plastic
with rock is evidence human pollution reaching Earth geological cycle. अर्थ जियोलॉजिकल साइकिल। आगे क्या है, दी desalination plants, National Institute of Ocean Technology, will set up a green self-powered desalination plants in the Lakshadweep. Once made operational, it will probably be the world's first desalination plant that will supply power to the plant as well while converting seawater to potable water. सी वाटर से पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो है टेक्नोलॉजी जो है जो यूज होता है वह वंस मेड ऑपरेशनल इट विल प्रोबेबली बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसल्टिनेशन प्लांट्स that will supply power to plant as well while converting sea water to potable water. आगे क्या कर रहा है, करेंट desalination plants are powered by diesel generator set, leading to the air pollution, increase in operational costs due to the diesel transportation to the diesel island. NIOT has established low temperature thermal desalination plants on 6 Lakshadweep Island and 1 at northern Chennai. कह रहा है NIOT has established low temperature thermal desalination plants on 6 Lakshadweep Island and 1 at northern island, Chennai. Desalination is a process of obtaining fresh water from either seawater or brackish water from the estuary. यह क्या करा, desalination is the process of obtaining fresh water from either sea water or brackish water from the estuary. आगे कर रहा है लो टेम्परेचर थर्मल desalination is a process in which warm surface sea water is flash evaporated at lower pressure. Vapor is condensed with cold deep water. ये क्या करेगा भाई, ये जो है ये टेक्नोलॉजी जो है आपका, ये जो टेक्नोलॉजी है लो टेम्परेचर थर्मल डेसलिनाइजेशन, ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, LTTD इज अ प्रोसेस इन विच द वार्म सरफेस सी वाटर इज फ्लैश इवेपरेटेड ए लोअर प्रेशर एंड वेपर इज कंडेंस विद कोल्ड डीप वाटर सी वाटर. Cold water condenses the warmer water at the surface level, whose pressure has been lowered using vacuum pumps. Condensed water is free of the salt and contaminant fit to consume. Now, instead of diesel power, vacuum pumps and ocean thermal energy conversion technology will be used to generate energy depressurize warmer water. आगे क्या करा है, NIOT क्या है भाई, NIOT क्या है, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बता रहा है. ये क्या करता है भाई, ये करता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये करता है ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ऑटोनोमस बॉडी है. Responsibility of the low temperate थर्मल desalination, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लो टेम्परेचर थर्मल desalination. ये क्या करेगा, डिजाइन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, डेमोस्ट्रेट करेगा और कमीशन करेगा. ठीक है ना. सो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं.
बेनिफिट क्या है भाई आपका? व्हाट इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिट ऑफ लो टेम्परेचर थर्मल डिसलिनाइजेशन? यहाँ पर पहला बेनिफिट बोल रहा है, डू नॉट रिक्वायर एनी केमिकल प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर एंड दस पोल्यूशन प्रॉब्लम आर मिनिमल। इसलिए इसमें क्या है, पहला बेनिफिट क्या है एल टी टी डी का, कि भाई आपको do not require any chemical pre and post treatment of sea water and thus pollution problem are minimal, completely indigenous, robust and environmental friendly। ये क्या है भाई, कम्प्लीटली इंडिजिनस है, मतलब अपने ही देश में बना हुआ है, रोबस्ट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। रोबस्ट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण से बहुत फ्रेंडली है, और इंडिजिनस है। ये सभी बेनिफिट है भाई। A do not require any chemical pre and post treatment of sea water and thus pollution problem are minimal, completely indigenous, robust and environmental friendly। यहाँ पर दे रहा है भाई आपका समथिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, NIOT के बारे में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? चेन्नई है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, क्योंकि भाई ये पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी हेड क्वार्टर इज इन चेन्नई, ऑप्शन दे सकता है। दूसरा दिल्ली दे सकता है। तीसरा कोलकाता दे सकता है। चौथा हैदराबाद दे सकता है। इस तरह से आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। सो इसलिए इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना इससे, और इसको आपको माइंड में रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज हेड क्वार्टर इन चेन्नई। जेनेसिस केस क्या है भाई? इट वाज इस्टेब्लिश इन 1993 एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी। ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में इसने इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। और कौन सा मिनिस्ट्री इसको होल्ड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एंड एम क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप रिलायबल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू सोल्व द वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। इसका एम है भाई कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, रिलायबल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, और वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्स इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये हार्वेस्टिंग करना है लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्स को, जो इंडियन एक्सक्लूसिव जोन में है, ठीक है ना। ये सभी ऑब्जेक्टिव एम था। एंड के ऑब्जेक्टिव क्या है भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी का क्या है के ऑब्जेक्टिव? की ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ओशन रिसोर्स। दूसरा में है टू प्रोवाइड कम्पिटिटिव वैल्यू एडेड टेक्निकल सर्विस एंड सॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द ओशन। तीसरा क्या है? टू डेवलप ए नॉलेज बेस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी इन इंडिया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द ओशन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट। अदर की इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज़ द डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर द डीप ओशन मिशन ऑफ इंडिया। इट इज़ द डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर द डीप ओशन मिशन ऑफ इंडिया। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट नोट है, और ये सभी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आगे भाई अगला है आपका, अगला टॉपिक है साउथ अटलांटिक अनोमली। साउथ अटलांटिक अनोमली, इसमें क्या करा है? actively monitored by the USA Space Agency NASA. South Atlantic anomaly is a strange anomaly in the Earth magnetic field. ये क्या कर रहा है? साउथ अटलांटिक anomaly is a giant region of lower magnetic intensity in the sky above planet, stretching out between South America and Southwest Africa. South America and Southwest Africa। इस साउथ अटलांटिक अनोमली क्या है भाई? ये जेंट रीजन ऑफ लोअर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन स्काई अबोव planet stretching out between South America and Southwest Africa। South Atlantic anomaly arises from two features of the Earth's core.
the tilt of its magnetic axis and flow of molten metal within its outer core. आगे करा similarly to a dense earth magnetic field or a kind of pothole in a space, it can affect orbital spacecrafts when passing directly through the SSM. Example causing short circuit malfunction in the technology system on board satellite when struck by the high energy proton from the sun. It increase the risk of significant data loss and even permanent damage. साउथ अटलांटिक अनामोली, यहाँ पर देख लो पिक्चर दे रखा है और ये आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या काम करेंगे हम, ये जो स्मार्ट फ्यूज है ना, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन भी इसका भी देख लेंगे, आपको मैं देख कर वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है ना। जो स्मार्ट कोड इन्वायरमेंटल वाला है ना, इसको भी हम